morning, students. So in this class we will continue our word problems and we will learn what is equations, right? So let us start. Last lecture we have completed till question number 4 and now we will do question number 5. Question is, the longest side of a scalene triangle is 3 times the shortest side, whereas the third side is 2 meters more than the shortest side. Express the length of the longest side and the third side in terms of shortest side. स्केलेन ट्रायंगल यानी उसकी सभी साइड डिफरेंट होती है, राइट? तो शॉर्टेस्ट साइड हमें बोला था लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड. तो शॉर्टेस्ट साइड कितनी है वो हमें पता नहीं, यानी ये साइड कितनी है वो हमें पता नहीं है. तो वो हम ले लेते हैं लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी, एस लेते हैं हम, एस मीटर, राइट? बाद में तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी होंगी? लॉन्गेस्ट साइड, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए स्केलेन ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड. 3 टाइम्स, इट मीन्स 3 multiplied by s, that is 3s. and third side, third side क्या है? and the third side is 2 meters more than the shortest side. 2 meters more, तो जो shortest side है उसमें 2 meters more, तो plus 2. so this is our answer. all are in meter. इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ. so ये s हुआ, ये 3s हुआ और ये s plus 2 हुआ. understood? now question number 6. question is, Tanya's age is 4 years more than her sister Vedika's age. Tanya's father's age is 5 years more than 8 times Vedika's age, and Tanya's mother is 2 years more than 3 times Tanya's age. Express the age of the family member in terms of Vedika's age. अभी तानिया की एज है, तानिया एज इज 4 years more than her sister Vedika's age. then उसके फादर की तानिया's father age is 5 years more than 8 times Vedika's age, and Tanya's mother is 2 years more than 3 times the Tanya's age. express the age. अभी वेदिका की हमें पता नहीं है, तो let the age of वेदिका बी x years. वेदिका की हमें पता नहीं है, तो तानिया की एज कितनी हुई? तानियाज एज इज 4 years more than her sister. तो तानियाज एज, तानिया की एज कितनी है? उसकी सिस्टर वेदिका से 4 साल बड़ी है. इट मीन्स x plus 4 years. right? now Tanya's father age, उसमें क्या लिखा है? तानिया's father age is 5 years more. it means plus 5. 5 years more than 8 times Vedika's age. वेदिका की एज x है, उसमें कितनी टाइम्स? 8 टाइम्स. इट मीन्स 8 multiplied by x. तो 8x plus 5 years. अभी तानिया की मदर की एज, तानियाज मदर्स एज, तो तानियाज मदर एज इज 2 years more, यानी plus 2. then 3 times तानियाज
एज, यानी तानिया की एज जितनी है, तानियाज मदर इज 2 year more than 3 times तानियाज एज। अभी वेदिका नहीं लेना, अभी तानिया की एज लेनी है, राइट। तो उसकी मदर की एज कितनी है, 2 year more, +2 लिख लिया, 3 times तानियाज एज, यानी इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 × x + 4, राइट। तो ये 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता है। 3 × x, तो 3x + 3 4 12 + 2। तो तानिया की मदर की एज कितनी होगी, 3x + 14 years। अंडरस्टूड। नाउ question number 7. Question is, a car travels at v km/h is going from Phagwara to New Delhi. After traveling for 6 hours, New Delhi is still 50 km away. What is the distance from Phagwara to New Delhi? The speed of car हमें दिया है, स्पीड ऑफ कार कितना दिया, v km/h, यानी v किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, राइट। द डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 hour, डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 hour, कितने किलोमीटर है, v किलोमीटर, तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 6 hours, कितनी होगी, 6 × v = 6v किलोमीटर, राइट। सो डिस्टेंस बिटवीन फागवाड़ा एंड दिल्ली विल बी, अभी देखो फागवाड़ा से 6 घंटे जाता है तो वो 6 किलोमीटर होता है, और बाद में फिर से 50 किलोमीटर तो बाकी है, तो +50 कर दूं इसमें तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन फागवाड़ा एंड न्यू दिल्ली कितना होगा, 6 किलोमीटर ट्रैवल कर, 6 आवर में 6 किलोमीटर ट्रैवल करता, बाकी के 50 किलोमीटर भी बच जाते हैं, तो +50 इतने किलोमीटर्स। अंडरस्टूड। नाउ लेट अस लर्न व्हाट इज इक्वेशंस। A mathematical sentence with an equality sign is called statement of equality. A few examples are shown. For example, 2 + 8 = 10. A statement of equality है 10 - 7 = 3. ये सब. Now, some statement of equality contains a variable. It means ऐसे 2 + x = 10. y - 7 = 3. The first two example, यानी ये दोनों example है, which contains no variable are called numerical equations. इसको बोलेंगे हम numerical equations, right. The last two example which contains a variable is called equation. इसको हम सिर्फ बोलेंगे इक्वेशन, क्योंकि सिर्फ इक्वेशन क्यों बोलना है, क्योंकि इसमें वेरिएबल है, और ये न्यूमेरिकल इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर है। अंडरस्टूड। टू समराइज, देयर इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल इन्वॉल्विंग
इन ये दोनों में कुछ कंडीशन है कि 2 में मैं कुछ प्लस करूंगा तो वो 10 हो जाएगा, या फिर y में से मैं -7 करूंगा तो उसका आंसर मुझे 3 मिलेगा, तो वो कंडीशन बन रही है, राइट। नाउ सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। इक्वेशन में वेरिएबल होना चाहिए, इक्वलिटी इक्वल की साइन होनी चाहिए, और मैथमेटिकल ऑपरेशन होना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी, राइट। सिर्फ नंबर्स या फिर इक्वल टू की जगह पे दूसरी कोई भी साइन वो चलेगी नहीं इक्वेशन में। अंडरस्टूड? नाउ स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन विथ वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर, आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन with a variable. So question number 1, फर्स्ट वन हमें दिया है 15 इक्वल टू x -3, ये इक्वेशन है, यस, एंड वेरिएबल इज x, इसमें x वेरिएबल यूज किया है। 15 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2, ये इक्वेशन है, नो। क्यों? क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, एन नो वेरिएबल। नाउ थर्ड वन, 2z इज ग्रेटर देन 7। मैंने क्या बोला था, इक्वेशन बनाने के लिए कंपलसरी यहाँ पे इक्वल की साइन आनी चाहिए, बट ये ग्रेटर देन साइन है तो ये इक्वेशन नहीं है, नो। बिकॉज क्यों इक्वेशन नहीं है? देयर इज नो इक्वल टू साइन, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, इसके लिए ये इक्वेशन नहीं है। एंड इसमें वेरिएबल कौन सा यूज किया है? वेरिएबल इज z। अंडरस्टूड? टू क्यू प्लस 1 इक्वल टू 11, ये इक्वेशन है, हाँ, क्यू वेरिएबल लिया है, इक्वल टू की भी साइन है, सो यस। एंड वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल इज q। नाउ इफ इट इज लाइक दिस, 3m/2 is smaller than 5 plus 7, ये इक्वेशन हुआ, नो। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी की साइन नहीं है, सो नो, बिकॉज देयर इज नो इक्वल टू साइन। वेरिएबल है, हाँ है, एंड वेरिएबल इज m। अंडरस्टूड? थैंक यू।